Let us see the introduction. This poem is written in the style of ballad, a song or poem that tells a story. So here you should understand what is ballad. Ballad is a one type of poem that you can also call it a song that tells a story of bravery, tells a story of courage. You must be familiar with the ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad, and this poem, The Tale of Custard the Dragon, is also ballad which tells us the story of courage, but this is in a very humorous way, and that you will understand when you will learn this poem. This poem is a humorous ballad close to a parody. What is parody? Parody is a type of literature that describes and adds comic effect to the poem or lesson prose. Read it aloud, paying attention to the rhythm. Let's start to learn the poem. The first stanza, Belinda lived in a little white house. So, here Belinda is the main character of this poem. Belinda lived in a little white house. She was living in a little small white house. It is a description of her house with a little black kitten. She was not alone. A little black kitten was living with her, a little grey mouse. A mouse was also living with her, and a little yellow dog. And a little yellow dog was living with her, and a little red wagon. And they also had a small red wagon with them. And a Riolio Trulio little pet dragon. They also had a little dragon with them. What is dragon? Dragon is generally known as in Chinese emperor. ओके, एक बहुत बड़ा सा जिसके मुंह से आग निकलती है ऐसा एक ड्रैगन, मगर यहाँ ड्रैगन को पैट कहा गया है. So Belinda was not alone. She also had company of kitten, mouse, dog, रेड वेगन. वेगन मतलब एक छोटी सी गाड़ी जिसमें सारे एनिमल्स और बेलिंदा घूमने जाते थे, और एक छोटा सा पैट ड्रैगन. वैसे ड्रैगन ऐसा छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, और आप डर जाओ इतना बड़ा होता है ड्रैगन. तो ऐसे छोटे से ड्रैगन के साथ वो रहती थी. एंड हियर रियलियो लिखा है. Why it is written here Riolio? Because the poet has used here his poetic license. And what is the name of the poet? Ogden Nash. He has used here his poetic license. Actually, the real spelling is real. Okay, the actual spelling is real. The actual spelling is true. But the poet has used here his poetic license. That's why he has changed the spelling in order to keep the rhythm and the rhythm of the poem. Okay, and a Riolio, Trulio, little bad dragon. So they were living in this little white house. Okay, we shall discuss the poetic devices used in the poem after the explanation, after the meaning of this poem. First, let us learn only poem, and then we shall learn the poetic devices, figures of speech in the last. Let us look at the second stanza. Now the name of the little black kitten was Ink. Okay, the little black kitten वो था, his name was Ink, and the little grey mouse she called him Blink. और जो उसके साथ माउस रहता था उसका नाम था ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. और जो उनके साथ छोटा सा येलो डॉग रहता था उसका नाम था मस्टर्ड.
ओके, ये शार्प जो लिखा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई है यहाँ पर। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। ओके, कावर्ड क्या होता है? बुजदिल। ओके, जिसमें करेज नहीं होती है उससे हम बोलते हैं कावर्ड। ब्रेव का ऑपोजिट है। मगर ये जो ड्रैगन था वो कावर्ड था। एक्चुअली ड्रैगन शुड बी मोर डेंजरस, ही शुड बी मोर एंग्री, ही लुक्ड एज एंग्री। ओके, क्योंकि वो दिखने में ऐसा होता है, मुंह से आग निकलती है और बड़े बड़े एनिमल्स सब कुछ निकल सकता है वो। मगर ये जो ड्रैगन था वो कावर्ड था एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और जो ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड। And that's also the title of our poem, The Tale of Custard. Now you know what is custard. Custard is the name of this pet dragon. Okay. Custard the dragon had big sharp teeth. Now in this stanza you will learn the description of the custard the dragon, how he looked, how it looked. Here all the animals has been taken as living person. Of course they are living but they are animal. But they are taken here as if they are human and they are speaking. That's why I have used here he. And it's okay if you use he pronoun in the answers too. Custard the dragon had big sharp teeth. कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके जो टीथ थे बहुत बड़े थे, शार्प थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसकी जो पूरी बॉडी थी उसके बॉडी पर स्पाइक्स थे। ओके, स्पाइक्स जो चुभते हैं ऐसे। एंड स्कैल्स अंडर नेथ। ओके, और उसकी जो पूरी बॉडी के अंडर, अंडर नेथ मतलब नीचे, स्कैल्स थे। स्कैल्स मतलब ऐसे, ऐसे जो छोटे छोटे स्ट्राइप्स होते हैं ना, इस तरह से। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो माउथ था, जैसे मैंने आपको बोला कि उसके मुंह से आग निकलती है, तो एक फायर प्लेस था उसका माउथ। चिमनी फॉर अ नोज, और उसका नोज था वो चिमनी जैसा था। एंड रियलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। डैगर्स क्या होता है? डैगर्स मतलब शार्प नाइफ। ओके, इस तरह से शार्प होता है नाइफ की तरह। ओके, जिसे लोग अपनी जो वेस्ट में लगा के घूमते रहते हैं कुछ लोग। ओके, तो उसकी जो टोस थी, उसके उस पर जो नाखून थे वो जैसे कि डैगर्स थे, नाइफ थे शार्प, इस तरह से वो लगते थे। सो थ्री स्टेंजास हैव बीन ओवर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेंजा। Belinda was as brave as a barrel full of bears. Bears. बेयर्स आप जानते हो, नेम ऑफ द एनिमल, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो एनिमल होता है वो बेयर। ओके, तो बेलिंदा वो इतनी ब्रेव थी गर्ल, एज अ बैरल ऑफ फुल ऑफ बेयर्स, जैसे बहुत सारे बेयर्स की उसमें ताकत भरी हुई थी। दैट्स व्हाई इट इज रियल रिटन हियर एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स। Okay, let me note down the name of Indrajit Singh who has just left the meeting. Okay. Uh, and Ink and Blink chased the lions down the stairs. और जो इंक और ब्लिंक थे, ओके, ये कैरेक्टर्स आप याद रखिए। चौधरी विक्रम। ओके, लेट मी नोट डाउन। सर, हाँ बोलो। लिंडा कौन है? नेम ऑफ अ गर्ल। ओके, मीन्स हाँ, कैरेक्टर। ओके, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टर, वो ह्यूमन है। बेलिंदा इज द मेन कैरेक्टर, वो छोटी सी लड़की है। इट इज एन इमेजिनरी स्टोरी। वो बेलिंदा के साथ ए इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड रहते हैं। इंक कौन है? छोटा सा किटन, इंसेक्ट। ब्लिंक कौन है? माउस है। मस्टर्ड कौन है? डॉग है। और कस्टर्ड कौन है? एक छोटा सा ड्रैगन। ये सारे बेलिंदा के साथ रहते हैं। बेलिंदा बहुत ही ब्रेव थी, कस्टर्ड भी बहुत ही बड़ा था, मगर
सब लोग उसे कावड़ कहते थे। क्यों कहते थे वो हमें पता नहीं। और जो बेलिंदा थी वो तो इतनी ब्रेव थी जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज द लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक थे, ओके, वो वो भी इतने, हमने देखो इसकी तो बात की, बेलिंदा की बात की, वो कितनी ब्रेव थी, जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स हो। और जो यहाँ पर इंक और ब्लिंक की बात बताई गई है, इंक और ब्लिंक भी इतने बहादुर थे कि अगर घर में लायन आ जाए तो लायन को भी सीढ़ियों से नीचे उतार दे और उनको चेस करे, इतने वो ब्रेव थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और जो मस्टर्ड, जो और एक एनिमल था उनके साथ, वो इतना ब्रेव था जैसे कि कोई टाइगर हो, और टाइगर भी रेज, रेज मतलब एंग्री, ओके, जैसे कि कोई टाइगर एंग्री हो, इस तरह से इतना बड़ा वो टाइगर गुस्से में कैसा लगता है, इस तरह से मस्टर्ड दिखता था। ओके, तो सब लोग कैसे थे आपको याद रहना चाहिए आंसर्स के लिए। देखो, ये बेलिंदा, वो कितनी ब्रेव थी, जैसे कि फुल ऑफ बेयर्स, ओके। इंक और ब्लिंक वो कितने ब्रेव थे, बोलो किसको याद है, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ। They chased the lions. ओके, दे वर ब्रेव एज इफ दे वर चेजिंग द लायंस डाउन द स्टेयर्स। ओके, और जो मस्टर्ड था वो इतना ब्रेव था जैसे कि एक टाइगर गुस्से से बैठा हो ऐसा लगता था। मगर ये कस्टर्ड था, वो वो कैसा था, क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ओके, कस्टर्ड का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो हमें थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। कस्टर्ड एक्चुअली सबसे सारे लोगों को डरा सके इतना था, मगर यहाँ कस्टर्ड तो पूरे दिन रोता रहता था कि बस मुझे तो एक सेफ जगह चाहिए, मुझे ऐसे नहीं घूमना। ओके, एक सेफ जगह ढूंढ के वो बैठा रहता था घर में, ऐसा कस्टर्ड था। इसीलिए ये जो इंक थे, फिर ब्लिंक, फिर मस्टर्ड और बेलिंदा, ये सारे लोग कस्टर्ड को कावड़ कह के उसको टीज करते थे कि तुम तो कावड़ है, बैठे रहो। नेक्स्ट स्टैंजा में आप देखोगे, बेलिंदा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। ये जो बेलिंदा थी जिनके घर में सारे लोग रहते थे, ये जो बेलिंदा थी उसे टिकल करते थे। टिकल करना मतलब मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ। बेलिंदा थी, उनकी टिकल करती थी, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो उसे अनमर्सीफुल कह के बुलाती थी। ओके, और जो बाकी के तीन बचे, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। वे लोग उससे, रूडली किसका ऑपोजिट है, कोई बताएगा। ओके, रूडली इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ पोलाइटली। ओके, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उनके साथ, they did not talk with him politely, they talked with him rudely, और उसे पर्सिवल कह के बुलाते थे। they all sat laughing in the little red wagon। ये सारे लोग जो उनकी रेड वेगन थी बेलिंदा के घर में, उसमें बैठते और हंसते रहते कि हाँ हाँ हाँ, देखो देखो देखो, वो उसको देखो कैसा है, कावड़ बैठा है सेफ जगह ढूंढ के। कहाँ किस तरह किसकी ओर स्थित है, एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। ओके, ये जो कावर्डली, जिसका जो बुजदिल ड्रैगन, जिसको वो लोग ऐसा मानते थे कि बुजदिल है, उनकी ओर हंसते रहते ये तीनों लोग। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सर पर्सिवल का मीनिंग। परसिवल इज वन ऑफ द वॉरियर। उनको परसिवल क्यों बोला, पर्सिवल किंग आर्थर था, उनका जो एम्पेरर था, उसमें वो एक वॉरियर था, बहुत ही ब्रेव था। मगर एक दिन वो कुछ ढूंढने गया तो उसे डर लगा तो वापस आ गया, ब्रेव था तो भी।
ओके, दैट इज वाई इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, ये भी ब्रेव था ड्रैगन, मगर बैठे रहता था कोने में, तो उसको पर्सिबल कह के बुलाया, इसीलिए। ओके। सर हाँ बोलो। सर अनमर्सीफुल का मीनिंग क्या होता है? मर्सीफुल मीन्स काइंड, और उसका ऑपोजिट, काइंड का ऑपोजिट। वैसे ड्रैगन अनमर्सीफुल ही होता है, मगर वो अनमर्सीफुल नहीं था, ऐसे काइंड की तरह बैठा रहता था, तो वो उसे टिकल कहता है। देखो कितना अनमर्सीफुल है, उसका फेस देखो कितना, अगर उसके पास जाओगे तो वो मार डालेगा, उसमें थोड़ी भी मर्सी नहीं है, थोड़ी भी काइंडनेस नहीं है। इस तरह से उसे टीज करते थे। बेलिंदा giggled till she shook the house. बेलिंदा गिगल टिल शी शुक द हाउस। गिगल मतलब कई बार हमें इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बंद नहीं होती, पेट दुखने लगता है। तो बेलिंदा भी इतना हंसती थी, इतना हंसती थी, जब तक पूरा जो हाउस था वो शुक, शुक मतलब हिलना, हिल ना जाए, इतना हंसती थी। एंड ब्लिंक, जो ब्लिंक था, वो उसे विक कह के बुलाता था। विक, विक इज वन टाइप ऑफ साउंड। ओके, कुछ साउंड से हम कुछ लोगों को टीज करते हैं, कुछ बच्चे, छोटे बच्चे, इस तरह से वो उसे विक विक कह के बुलाते हैं, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। ओके, और माउस भी उसकी ओर हंसता रहता था। और इंक एंड मस्टर्ड, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक एंड मस्टर्ड थे, वो रूडली उसकी एज पूछते रहे। कस्टर्ड, व्हाट इज योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह से उसकी, दे मेड फन ऑफ कस्टर्ड। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, तो भी कस्टर्ड कुछ नहीं बोलता था, वो सिर्फ रोता रहता, मतलब ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता। फॉर अ नाइस सेफ केज, एक अच्छी सेफ जगह ढूंढ के वो बैठा रहता, कुछ अपोज नहीं करता था, ये चारों लोग कितना भी उसे टीज करें। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। ओके। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, चलो एक बार फिर से देख लो ये। द टेल ऑफ अ कस्टर्ड द ड्रैगन, Custard is the name of the dragon who lived with Belinda. Belinda was living with little grey mouse, with a little black kitten and a yellow dog. They also had red wagon in their house. They also had a little pet dragon living with them. What was the name of them? The black kitten was named Ink. The little grey mouse was named Blink. The dog was named as Mustard. And the dragon's name was Custard. And in this stanza, we saw the description of the custard. कस्टर्ड हैड अ शार्प टीथ, जैसा होना चाहिए ऐसा ही था, शार्प टीथ थे, उसकी बॉडी पर स्पाइक्स थे, अगर कोई उस पर अटैक कर दे वो स्पाइक से ही मर जाएगा, इतना वो था। और उसकी अंडरनीथ स्केल्स थे, ओके, इस तरह से स्ट्राइप्स थे। उसका माउथ था फायरप्लेस की तरह था, उसका नोज था वो चिमनी की तरह था। or Riolio, Trilio are the words that the poet has used to bring the rhythm in the poem. He has used his poetic license to make changes with the words that we had already discussed in previous poems. And this dragon also had daggers on his toe. उसकी टोज पर, पाँव में इतने बड़े नाखून थे, वो डैगर्स जैसे थे, नाइफ जैसे। बेलिंदा भी बहुत करेजियस थी। इंक और ब्लिंक तो इतने करेजियस थे कि लायन आ जाए तो उसको भी चेस करके सीढ़ियों से उतार के भगा दे घर में से। और मस्टर्ड भी टाइगर जैसी चिल्ला के घूमता रहता था, मगर कस्टर्ड था, कुछ ऐसा शो अप नहीं करता था, वो बस सेफ जगह ढूंढ के बैठा रहता था। दे ऑल मेड फन ऑफ दिस कस्टर्ड। Belinda tickled him, she called the dragon unmerciful, ink, blink and mustard. They rudely called him Percival. Percival मैंने समझाया, Percival पहले के एज में एक वॉरियर था, ओके, एक योद्धा था। वो किंग आर्थर के एम्पेरर में था, वो बहुत ही करेजियस था, मगर एक दिन कुछ ढूंढने गया, ऐसी स्टोरी है उसकी, तो वो डर के वापस आ गया। तो जो ऐसे डरते रहते हैं उनको परसिवल बुलाते हैं।
इंग्लिश लिटरेचर में। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियल यू ट्रिल यू कावर्डली ड्रैगन। बेलिंदा इतनी हंसती रहती थी, पूरा घर हिल जाता। ब्लिंक उससे विक कहता, माउस भी हंसता रहता, इंक और मस्टर्ड उसकी एज पूछते रहते, तो भी कस्टर्ड थोड़ा सा भी अपोज नहीं करता था और सेफ केज में बैठा रहता। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। नास्टी मतलब बैड, जो हमें अच्छा नहीं लगे वो। एक दिन सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड एंड व्हाट वाज दिस साउंड, क्या हुआ था? एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, साउंड ऐसी थी मस्टर्ड ग्रॉल, ग्रॉल करना मतलब रॉर। आप मस्टर्ड भी कुछ ग्रॉल करने लगा एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो लोग देखने लगे कौन है कौन आ रहा है। म्याउच क्राइड इंक, और जो इंक थी वो भी चिल्लाई, म्याउच ऐसी आवाज निकाली। एंड ओ क्राइड बेलिंदा, तो कुछ हुआ था शायद, कोई ऐसा पर्सन था जिसके सारे लोग डर गए थे। बेलिंदा भी चिल्लाई कि ओ फॉर, क्यों? फॉर का मतलब आप जानते हो, फॉर मतलब बिकॉज, फॉर मतलब सिंस, दैट्स ऑल्सो योर ग्रामर टॉपिक। बिकॉज देयर वॉज अ पायरेट। चलो पायरेट कौन बताएगा, कौन है पायरेट, क्या होते हैं? एक इंग्लिश फिल्म भी है पायरेट्स, जानते The हो क्या? captain of any ship, यस, फिर से बोलो बेटा। captain of any ship, कैप्टन ने, पायरेट्स जो होते हैं एक्चुअली दे आर यूज्ड फॉर रॉबर्स हु आर रॉबिंग इन ओशन। uh, जो समंदर में जो रॉबिंग करते हैं, लूटते रहते हैं सारे लोगों को, वो पायरेट्स होते हैं। ओके, उनका काम होता है लोगों को रॉब करना। क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्लाइंबिंग इन द विंडा, हियर इट्स नॉट एक्चुअली विंडा, इट्स विंडो, but the poet has made the change with the word because he wants to make rhyming with Belinda Winda, that's why. Okay, Belinda और विंडा। बिकॉज एक पायरेट ने उनके घर पर अटैक किया था, वो उसकी विंडो पर, विंडो में से आ रहा था। ओके, कैसा था वो पायरेट? ये पायरेट याद रखना, पायरेट नहीं समझ में आता तो पूछ लेना, अभी भी मैंने समझाया आपको। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट हैंड, उसके दोनों हाथ में गन थी, राइट हैंड में भी थी, लेफ्ट हैंड में थी। इतना कम था, ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। कटलेस क्या होती है? एक छोटी सी तलवार होती है, स्मॉल स्वॉर्ड। उसके टीथ में एक स्मॉल स्वॉर्ड, मुंह में एक छोटी सी स्वॉर्ड लेके, दोनों हाथ में गन लेके ऊपर आ रहा था। हिज बर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो बर्ड थी वो ब्लैक थी। वन लेग वॉज वुड, उसका एक जो पांव था वो लकड़ी का बना हुआ था। कि कैसा होगा, एक पांव लकड़ी का, विंडो में से आ रहा था, दोनों हाथ में पिस्तौल थी, उसके मुंह में एक छोटी सी स्वॉर्ड थी। इट वॉज क्लियर, और देखने से साफ लग रहा था that his intention was not good. The pirate meant no good. वो कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा था, सब कुछ लूटने के लिए। और ये सारे जितने घर में थे, बेलिंदा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ड्रैगन, सबको मारने के लिए आ रहा था, क्योंकि दोनों हाथों में पिस्तौल थी और उसकी दांत में एक छोटी सी स्वॉर्ड भी थी। ओके, और देखने में भी वो बहुत ही डेंजरस लग रहा था, क्योंकि उसकी बर्ड थी वो ब्लैक थी, एक पांव लकड़ी का था। ओके, बेलिंदा पैल्ड, पैल्ड मतलब क्या होना, कलर चला जाना। जब हमारे क्लोथिस पुराने हो जाते हैं तो उनका कलर थोड़ा वीक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पैल। मगर यहाँ बेलिंदा पैल हुई, मतलब बेलिंदा इतनी डर गई कि उसके मुंह से दिख रहा था कि पूरी डर गई है।
ओके। वो स्टार्टिंग में हमने बताया कि वो फुल ऑफ बेयर्स थी, इतने सारे बेयर्स, वो इतनी करेजियस थी, मगर ऐसा कुछ लगा नहीं, अभी वो डर गई। एंड शी क्राइड, चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, बट मस्टर्ड फ्लैड विथ अ टेरिफाइड एल्फ। और जो मस्टर्ड था वो भाग गया। मस्टर्ड जो अभी टाइगर जैसा था, कि टाइगर इन अ रेज, इट वॉज लाइक अ टाइगर इन अ रेज, मगर वो भी वहां से भाग गया। फ्लैड किसका पास्ट है? फ्ली का। ओके। विथ अ टेरिफाइड एल्प, एल्प क्या होता है? स्क्रीन, एल्प मतलब स्क्रीन। तो और टेरिफाइड मतलब डरी हुई स्क्रीन के साथ वो वहां भाग गया। कौन सी स्क्रीन? उसका फेस। ओके, वो इतना उसके फेस पर डर गया, दिख रहा था, वहां से वो फ्ली हो गया। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, उसका जो घर था उसमें एक बॉटम था। ओके, वहां पर ए इंक थी, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल मतलब रैन अवे साइलेंटली, दबे पांव भाग जाना, उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन। ओके, तो इंक थी, वहां भाग गई। ओके, कोई नहीं बचा, देखो बेलिंदा डर गई, जो बेर्स जैसी थी। ओके, करेजियस थी। मस्टर्ड जो टाइगर जैसा था, वो टेरिफाइड एल्प स्क्रीन लेके वहां से चला गया। इंक थी, वो ट्रिकल डाउन, किसी को पता नहीं चले, इस तरह से करके बॉटम में चली गई वहां पर। और छोटा सा माउस था, ब्लिंक। ओके, स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली मीन्स परफेक्ट प्लानिंग, कोई इसको दिख ना ले, माउस होल्ड, तो उसका जो माउस हॉल होता है, हॉल में रहता है ना माउस, तो उसमें जाके वो बैठ गया। और बेलिंदा अकेली रह गई, कि पायरेट अगर मारेगा तो सिर्फ बेलिंदा बचेगी, कोई नहीं था। सारे लोग जो बहुत बोलते रहते थे, सारे लोग वहां से भाग गए। बट अब जम्प्ड कस्टर, मगर अब तक जिसे सब कावड़ कह के चिल्ला, उसे टीज करते थे, गिगल करते थे, टिकल करते थे, वो कस्टर्ड एक जंप करके ऊपर आया, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, जैसे कि कोई ट्रेन का बड़ा इंजन चल रहा हो और उसमें से जो आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड स्नॉर्टिंग साउंड। ओके, उसके मुंह से इतनी बड़ी इंजन की आवाज आ रही थी, इंजन की तरह। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, डंजन क्या होता है? डंजन होता है अंडरग्राउंड सेल, जो प्रिजनर होते हैं उनके लिए अंडरग्राउंड में कुछ बहुत डेंजरस प्रिजनर्स होते हैं, तो अंडरग्राउंड सेल बनाते हैं, जिससे वो कहीं भाग नहीं जाए। और उसके जो गेट्स होते हैं बड़े बड़े आयरन्स के होते हैं, उसको अगर खोलो बंद करो तो बड़ी सी आवाज आती है। ओके, तो ऐसे अंडरग्राउंड सेल के आयरन डोर्स की तरह उसने अपनी जो टेल थी, ड्रैगन ने क्लैश, क्लैश मतलब मारी, ऊंची उसको ऊपर करके नीचे उसकी आवाज आई, इतनी बड़ी आवाज आई। With a clatter and clank, that's a sound, clatter is a sound, clank is a sound, and jangling is a sound. Squirm, स्क्वम करना मतलब ऐसे हम सुबह में उठते हैं तो ऐसे बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करके लेफ्ट राइट करके बैठते हैं, उसको बोलना बोलते हैं स्क्वम। तो अभी तक तो जो हमारा ड्रैगन था उसकी हैबिट थी कि वो कुछ अपोज नहीं करता था, वो कैसा है कुछ नहीं बोलता था, मगर ऐसे बॉडी को स्क्वम करके आवाज करके वो वहां पर बैठ गया। He went at the pirate. He went at the pirate like a robin at a worm. ये रॉबिन एक बर्ड है, उसको अगर कहीं जगह पर वॉर्म दिख जाए तो आसमान से ही वो छलांग लगाता है और वॉर्म को पकड़ लेता है। इसी तरह ये हमारा जो ड्रैगन था, वो डायरेक्टली पायरेट्स की ओर दौड़ता हुआ गया। If having doubts, you can ask. Okay, and I hope that you are understanding the poem well if you are not speaking a word. The pirate gaped at Belinda's dragon. ये जो गैप लिखा है उसका मीनिंग होता है स्टेर, स्टेर इन ओ, स्टेर इन ओ, स्टेर इन ओ मतलब हैरान होके देखते रहना, हैरान होके देख। पायरेट तो उसने ऐसा सोचा ही नहीं था, जिसके दोनों हाथ में गन थी,
मुंह में एक छोटी सी स्वॉर्ड थी। ओके, वो तो देखते ही रह गया एट बेलिंदास ड्रैगन, कि बेलिंदा के पास ऐसा डेंजरस ड्रैगन है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन। गल्प्ड मतलब ड्रिंक करना, पीना। तो वो इतना डर गया कि उसने कुछ पिया। कहाँ से पिया? फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन मतलब एक सिल्वर कलर की बॉटल होती है, उसको बोलते हैं फ्लैगन। ओके, तो उसकी पॉकेट में एक सिल्वर कलर की बॉटल थी, उसमें कुछ एनर्जी ड्रिंक था, ग्रॉग। ओके, और वो ड्रिंक वो होता है जो सेलर्स पीते हैं, ड्रंक बाय सेलर्स, ग्रॉग, जिससे उनको एनर्जी मिलती है और उस दे फील समथिंग लाइक एनर्जेटिक। तो उसने ड्रैगन को देखा तो सिल्वर बॉटल फ्लैगन में से एक ग्रॉग का एक घूंट उसने पी लिया, गल्प। ही फायर्ड टू बुलेट्स, दोनों हाथ में गन थी, तो उसने दो बुलेट फायर की, बट दे डिडंट हिट, एक भी बुलेट उसको लगी नहीं। एंड कस्टर्ड gobbled him every bit. गॉबल्ड, गॉबल्ड मतलब स्वेलो, गॉबल्ड मतलब स्वेलो करना। कस्टर्ड उसको पकड़ के स्वेलो, निगल गया, पूरे पायरेट को पकड़ा, मुंह में डाला और निगल गया। एवरी बिट मतलब कुछ भी नहीं बचाया, पूरा का पूरा उसको निगल गया। हिम मतलब पायरेट्स, पायरेट को। Belinda embraced it. Now they were safe because Pirate was won over by Dragon. Dragon swallowed him. Now Belinda and all the animals were safe. Belinda embraced him. Belinda ने उसको embrace किया। मस्टर्ड लीक्ड हिम, मस्टर्ड भी उसे लीक करने लगा। मस्टर्ड कुत्ता था, तो कुत्ता क्या करता है, अपनी टंग से वो लीक करता रहता है उसकी फेवरेट चीज। तो अभी मस्टर्ड के लिए वो फेवरेट नहीं था ड्रैगन, अभी 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 उसके लिए फेवरेट हो गया, क्योंकि वो ड्रैगन को निकल गया तो उसको लीक करने लगा। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। ओके, मॉर्न मतलब जब कोई कोई मर जाता है, जो जो पूरी सैडनेस होती है ना, उसको बोलते हैं सैडनेस। ये जो पायरेट विक्टिम हुआ, किसका विक्टिम हुआ? ड्रैगन का। उसके लिए किसी ने भी मॉर्न नहीं किया कि अरे बेचारा पायरेट मर गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड गायरेट। ग्ली मतलब हैप्पी, ग्ली मतलब हैप्पी, और गिरेट मतलब मूविंग विथ डांस, मूविंग विथ डांस। जब ज्यादा खुश हो जाए, डांस करते करते घूमने लगते हैं। ओके, तो इंक और ब्लिंक बोर्ड में भी अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जो कुछ लोग मार्कशीट लेके वहां स्कूल में ही डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये इंक और ब्लिंक जो थे वो हैप्पीली डांसिंग, दे वर वेरी मच हैप्पी अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। कहाँ डांस करने लगे? ड्रैगन की, और ड्रैगन की, ड्रैगन को घूमते हुए, दैट एट द पायरेट, जो पायरेट को खा गया था। सर हाँ बोलो यश। सर बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम मतलब समझ में नहीं आया। गले लगाया उसको। ओके। ओके, गले लगाना, एम्ब्रेस करना मतलब। ओके। दूसरे किसी स्टूडेंट्स को डाउट्स है? ओके गुड। बट प्रेजेंटली सर अप्स, आज आपने क्या लिखा है मूविंग विथ के बाद? यहाँ पर मूविंग विथ डांस, ओके। डांस करते करते घूमना, उसको बोलते हैं गिरेट। ओके, एक जगह पर डांस नहीं करता, घूमते रहना डांस करते करते। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अभी ये मस्टर्ड कहाँ जाके छुप गया था, माउस कहाँ गया था, ब्लिंक कहाँ गई थी, कहाँ गया था, वो आपको पता है। ओके, और पहले क्या बात करते थे। ओके, जब उसको शो अप करना था, जो उनकी क्वालिटीज थी, तब उन्होंने शो नहीं किया। अभी वो किस तरह से बिहेव करते हैं देखते हैं। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, जो छोटा सा डॉग था मस्टर्ड, वो टाइगर होने की बात करता था। वो क्या बोला कि आई had have been twice as brave,
मैं तो ड्रैगन से भी 2 गुना ब्रेव हूँ। इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं होता तो। फ्लस्टर्ड मतलब कंफ्यूज। अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं होता ना, मैं कंफ्यूज हो गया, अदरवाइज मैं ड्रैगन से 2 गुना ब्रेव हूँ। एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक भी बोले, वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव विथ हिम। हम तो ड्रैगन से 3 टाइम्स ब्रेव है, हम ऐसा सोचते हैं। एंड कस्टर्ड से तो भी कस्टर्ड कुछ नहीं बोला। आई क्वाइट एग्री, मैं एग्री हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ज्यादा ब्रेव है। कस्टर्ड वॉज वेरी काइंड हार्टेड। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse, and her little yellow dog and her little red wagon, and her really trillion little pet dragon. That's the repetition of the first stanza. Belinda is as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. That's also a repetition of the second stanza. Okay, and here is the name of the poet, Ogden Nash. Ogden Nash wrote over 400 pieces of comic verse. The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. His work is perhaps best described in the poetic tribute by Anthony Burgess. वो उनके बारे में क्या सोचते थे वो यहाँ लिखा है। ओके, एक डॉग वर्ड आ गया, मतलब ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाय सेलर्स। यस, योर माइक इज टू मच नॉइजी बेटा। गिरेट मतलब टू मूव अराउंड इन सर्कल, डांस करते करते घूमते रहना। ओके, यहाँ पर सर हाँ बोलो। सर लास्ट पैराग्राफ आपने कहा पैराग्राफ का रिपीटेशन है, बट मे बी फर्स्ट पैराग्राफ में फॉरवर्ड। बेटा कुछ समझ में नहीं आया था आप क्या बोल रहे हो, इतनी नॉइज आ रही है आपकी माइक में से। मैसेज में लिखो, मैसेज में लिखो, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। Okay, let us discuss the poetic devices used in the poem. In the first stanza, first let us discuss what is the rhyming scheme. House, okay, house, that is A, mouse, that is A, house mouse, okay, wagon dragon, that is B, B. So rhyming scheme is A, B, B. Okay, second stanza, ink blink same है, that is C, C. Mustard custard same है, D, D. C, C, D, D. So this is the rhyming scheme in the whole poem. सारे स्टेंजा में यही स्कीम है, दो दो लाइंस राइमिंग्स होती है। ओके, तो दैट इज राइमिंग स्कीम, A, B, B, C, C, D, D in the whole poem. Okay, now let us see what are the figures of speech used in the poem. Belinda lived in a little white house. Here you can see a little, a little black kitten, a little grey mouse, a little red wagon, a little yellow dog. So a little word has been used many times. So we can say that poet has used here repetition. ओके, रिपीटेशन यहाँ पर बहुत सारी यूज की गई है। फिर दूसरी क्या हम सोच सकते हैं, रेड पैट ड्रैगन, यहाँ पर जो लिखा है ये देखिए, पैट ड्रैगन। ड्रैगन को पैट नहीं कर सकते, कुत्ते को कर सकते हो, बिल्ली को कर सकते हो, मगर ड्रैगन को थोड़ा पैट एनिमल की तरह रख सकते हो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये ऑक्सीमोरन है यहाँ पर। ओके, पैट ड्रैगन वो ऑक्सीमोरन है। फिर यहाँ पर देखो आई, फिर यहाँ पर आई
यहाँ पर व्हाइट में आई, तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? आई, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट हैव बीन रिपीटेड. Assonance, sir. Yes, assonance. Okay, assonance has been repeated here. Then, okay, second stanza. यहाँ देखो, sharp as mustard. Whenever there is as and like are used with figure of speech, it is called? Simile. Yes, simile. Okay, it is simile. फिर यहाँ पर देखो, सी सी, consonants have been repeated here. These are consonants repeated in the beginning of the word. So उसको क्या बोलेंगे हम? Alliteration. 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 और बीच में रिपीट होते तो क्या बोलेंगे उसको? Consonant. कॉन्सोनेंट्स. ओके, बीच में रिपीट होते हैं कॉन्सोनेंट्स, तो उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स. तो भी ये एलिट्रेशन है. फिर यहाँ पर देखो, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक यूज हुआ है तो वो क्या है? Simile. सिमिली. यस. चिमनी फॉर अ नोज, ये कौन सी है? Metaphor. मेटाफर. क्यों ये मेटाफर है? As like के बिना comparison हुई इसलिए. Okay, there is comparison between chimney and nose, but like and as are not used. That's why it is metaphor. बाद में ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है. फिर नेक्स्ट, बेलिंदा वॉज एज ब्रेव. यहाँ पर देखो, ए ब्रेव बी, बैरल बी, bears बी. Consonants have been repeated in the beginning. क्या है यहाँ पर? Alliteration. Alliteration. ओके. फिर यहाँ पर मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर. ये क्या है? एज अ टाइगर. Metaphor. सिमिली. Simile. बिकॉज लाइक एंड एज आर यूज्ड हियर. ओके. फिर यहाँ पर देखो, दे रूडली, दे रूड, एक मिनट, दे रूड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. ओके, तो यहाँ पर इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड को ह्यूमन की तरह बुलाते हैं. तो ह्यूमन की तरह किसी को बुलाते हैं तो they are personified, so we can say that personification has been used here. Okay. But फिर sir, ink, blink और mustard तो living मतलब living beings ही है ना? लिविंग बींग्स मतलब एनिमल है. पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन की तरह, लाइक अ ह्यूमन, दैट्स वाई. लिविंग बीइंग्स है मगर ह्यूमन नहीं है, एनिमल है. ओके. Okay. Yes sir. ओके. सर सर फर्स्ट लाइन में टिकल्ड हिम ट्वाइस बार आया है तो रिपीटेशन नहीं होगा? यस यस, ऑफ कोर्स रिपीटेशन इज आल्सो देयर. ओके फाइन. टिकल टिकल है been repeated here. रियल या ट्रूली का कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा. ओके. फिर यहाँ पर देखो, एक गिगल साउंड है, विक साउंड है, गिगल साउंड है. तो साउंड के लिए आपको पता है क्या है? Onomatopoeia. Onomatopoeia. ओनोमेटोपोइया भी बोल सकते हो, ऑनमाटिया भी बोल सकते हो. इसे इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ऑनमाटिया. ऑनमाटिया भी कर सकते हो, ओनोमेटोपोइया इस तरह से भी कर सकते हो. ओके. फिर फिर एलिट्रेशन वो सब देख लेना आप. ओके. एसोनेंस, सडनली, सडनली दे, यहाँ सडनली रिपीट हुआ है. ओके, तो रिपीटेशन बोल सकते हो इसको. फिर यहाँ पर साउंड है देखो, म्याउच, फिर ओ, तो फिर अगेन ओनोमेटोपोइया हैज बीन यूज्ड हियर. फिर यहाँ विंडा,
spelling. The poet has changed the spelling of the window. Okay, that we will call it poetic license of the poet. Pistol in his left hand, pistol in his right. The word pistol have been repeated, so repetition है. फिर P is the consonant. ओके, तो उसको एलिट्रेशन भी बोल सकते हो आप. फिर बेलिंदा पैल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो यहाँ पर भी हेल्प रिपीट हुआ है. ओके, फिर एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंट्स, वो तो हर एक पैराग्राफ में है, वो आपको पता है. रिपीटिशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके, वॉवेल्स रिपीट होते हैं स्टार्टिंग में तो एसोनेंट्स, स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं तो एलिट्रेशन, और बीच में कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं तो कॉन्सोनेंट्स. इस तरह से, क्योंकि हमने जून जुलाई अगस्त में पढ़ा था फिगर्स ऑफ स्पीच. बट jumped a custard snorting like an engine. ओके, यहाँ पर भी ओनोमेटोपोया है. देखो, क्लैश्ड साउंड है, क्लैटर साउंड है, क्लैंक साउंड है, जैंगलिंग साउंड है. ओके, तो ओनोमेटोपोया है. फिर पायरेट गैप्ड एट बेलिंदास ड्रैगन, तो यहाँ पर देखो ये जी रिपीट होता है, यहाँ पर भी ये जी रिपीट होता है. तो ये क्या है? सर कॉन्सोनेंट्स. बिगिनिंग में होता है, बीच में नहीं. सर एलिट्रेशन. ड्रैगन में भी पीछे होता है. लास्ट सेकंड पे है. सर ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखो सेम. अरे कहाँ चला गया? यहाँ पर जी, यहाँ पर भी जी, तो that is also alliteration has been used here. ओके, जो सारी जो आईएमपी थी वो सारी आ गई. अभी किसी को कुछ डाउट्स नहीं है पोएम में? सोनी, यश, आपने लिखा नहीं कुछ? मैसेज में कुछ पूछ रहे थे आप? नो सर, क्लियर हो गया डाउट. ओके ओके, माइक बंद करो, बहुत ही नॉइसी साउंड है आपकी आज. ओके, फिर थोड़ी एग्जाम के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे. बराबर, ये आपको कितने आंसर्स लिखने हैं देखो. वो आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पैट नेम्स. इजी है. व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केश? व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन? क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा था. ओके, बैठा रहता था. बेलिंदा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, ये भी लिखना है. The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed dungeon. The poetic device here is a simile. Can you with your partner list some more poetic devices? चलो, ये नहीं लिखना है क्योंकि ऐसे नहीं पूछे जाएंगे. Can you find out the rhyming scheme? ये राइमिंग स्कीम लिखना नहीं, मगर याद रखना हो, आपको पता है, ये पूछ सकते हैं. ये बी बी सारे पोएम में यही है. ओके ओके, तो 3 ही आंसर हुए. दूसरे 2-3 में एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको. ओके, वो लिख देना, क्योंकि 2 मार्क्स में कुछ भी पूछ सकते हैं. तो अभी हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं. दिस फर्स्ट वीक इज गोइंग टू बी फॉर योर इंग्लिश एग्जाम. दिस थर्सडे 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम एंड संडे 25 मार्क्स, that is for subjective. ओके, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो एग्जाम के बारे में. चैप्टर सर. चैप्टर, अभी ये बोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, 1 मिनट वेट करो. 1 मिनट. क्या पूछे बोलो. ये आज की ड्रैगन पोएम पूछ लेते हैं. कल 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 नहीं, सॉरी, थर्सडे को जो ऑब्जेक्टिव होगी उसमें ये ड्रैगन वाली पोएम, और उसके पहले जो लेसन हमने पढ़ा, क्या नेम था उसका? मैडम राइड्स द बस. यस, मैडम राइड्स द बस. उसमें से ऑब्जेक्टिव, और ग्रामर में तो सब कुछ आएगा. ओके, वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच,
ऑब्जेक्टिव है तो आपको इस तरह से लिखने हैं। सर हाँ बोलो। सर बोर्ड की एग्जाम की पेपर स्टाइल में ना सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर के लिए एक भी क्वेश्चन ही नहीं दिया है। देखा आपने? हाँ, और मैंने ना तभी भी पूछा था सर से। एक भी मार्क्स का नहीं है, देखा आपने? 100%। हाँ सर, क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं है, पर हमारे सर ने ऐसा बोला कि कॉम्प्रिहेंशन जो रखे हुए ना दोनों सेक्शन में, वो शायद सप्लीमेंट्री से उठा के रख सकते हैं। कहाँ पर? हाँ, ओके। नहीं होगा, मैंने देखा नहीं, पूरा पेपर पढ़ा नहीं। मगर तुम बोलते हो तो मैं पढ़ लूंगा अभी। एक मिनट में देख लूं, मेरे पास होगा शायद। एक्सक्यूज मी। सबने पेपर स्टाइल देख ली होगी। ओके, इस तरह से पेपर होगा। मगर उसमें एक सेंटेंस लिखा है कि दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द पेपर। कुछ भी थोड़ा कुछ चेंज कर सकते हैं उसमें। एक मिनट हो, पेपर मिल जाता है मुझे अभी, हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। ओके, आपके ग्रुप में ही होगा, एक मिनट। ये रहा पेपर, देखो आपका। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं नहीं होगा, देख लेते हैं। चलो देखो इसमें ये गुजराती में लिखा हुआ है, मगर पेपर स्टाइल आपकी ही है, फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन, सिंथेसिस। ऑब्जेक्टिव आंसर्स 24 मार्क्स, शॉर्ट आंसर 5 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप 18 मार्क्स, लॉन्ग आंसर 3 मार्क्स, और ऐसे टाइप 30 मार्क्स। ओके, इस तरह से 80 मार्क्स का वेटेज है। और वेटेज ऑफ स्किल, रीडिंग स्किल 12 मार्क्स, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन ऐसा कुछ होगा। राइटिंग स्किल 30, ग्रामर 20 मार्क्स का है, लिटरेचर कॉम्प्रिहेंशन 18 मार्क्स का है। जो चैप्टर कैंसल कर दिए हैं उसमें से कुछ पूछा नहीं जाएगा। ओके, comprehension MCQ, comprehension passage, fill in the blanks, textual question. Okay, figures of speech, textual question 4 out of 6, textual question attempt 5 out of 7। तो ये 5 और 4 9 क्वेश्चन हुए। फिर डायरी, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर। यहाँ ऑप्शन बढ़ गए, देखो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस और पोस्टर, पुरानी में 2 ही थे। रिपोर्ट कंपलसरी हो गया है। लेटर, ईमेल, ऐसे या स्टोरी राइटिंग। सर मतलब वो दोनों चीज होगी ना, लेटर और ईमेल, बाद में हम दोनों उन दोनों में से एक लिखने का ना। यस यस, दोनों हो गए। एज यू लाइक, यू कैन राइट लेटर और ईमेल, दोनों हो गए। और लिखा है ना वहां पर, रिपोर्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक ही होगा। सेरेमनीज टू प्लेस। ओके, फ्रैंक। चलो ये भी टेक्सचुअल है। ये सारे क्वेश्चन देखे आपने? सर टेक्स्ट। हमें क्वेश्चन की नहीं करवाई, हमें सिर्फ वो ऊपर की पेपर स्टाइल थी ना वही करवाई। ये क्वेश्चन पढ़े किसके हैं? नहीं नैरेटर्स एक्सपीरियंस एरोप्लेन का है। ओके, सर ये पैगी सारे का। फर्स्ट टाइप के हैं। फिर से बोलो तो बेटा। सर ये सारे 11 to 17 फर्स्ट टाइप बुक के हैं। सारे फर्स्ट लाइट के। ओके, ये टेक्सचुअल है। हियर्स, ये पोएट्री के, डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर, एमांडा, कस्टर्ड। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा है ना क्वेश्चन, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, एनिमल्स, एरर्स।
ओके, ग्रामर में थोड़ा चेंज है, देख लेना। ग्रामर में आपको ऑप्शन दिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा थोड़ा। आपको आंसर देख देख सकते हो कि फोर में से एक तो आंसर है। अदरवाइज ये पुरानी पेपर स्टाइल में ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आपको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है। ओके, डू एज डायरेक्टेड में थोड़ा ये बहुत बड़ा चेंज है। ओके, मुझे भी नहीं दिखे सप्लीमेंट्री के, मगर यहाँ पर एक बिगिनिंग में लिखा है, देख लेते हैं, देखो। वो मॉडरेटर वाला ना सर? हाँ, ये स्टार्टिंग में लिखा है ना, मॉडरेटर्स इज अलाउड टू मेक चेंजेस इन द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। कुछ भी वो चेंज कर सकते हैं, फेरफार करવાની છૂટ રહેશે આવું લખ્યું છે અહીંયા. So they are allowed to make changes, and they have declared that 1 to 5 are going to be asked. 1 to 5 है, 1 to 6 1 to 5 सर, 1 to 5 तो पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है, समरी दो ही पढ़नी हमने। और सर। ये तो सर ने बोला था ना, इसलिए मैंने आपको पूछा। याद की हुई है। और ये मंथ एंड की एग्जाम होगी ना जो जनवरी में, उसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 सप्लीमेंट्री, ओके, वो ऐड कर देना, क्योंकि वो जो आप लोगों को नोटिफिकेशन दी है उसमें मैंने ऐड नहीं किया था, रह गया था, तो वो ऐड कर लेना, सप्लीमेंट्री 3 और 4। और फेब्रुआरी में होगी, उसमें यूनिट 5 ऐड कर लेना। ओके, बाकी ग्रामर जो भी होता है सारा। तो अभी आपको एग्जाम क्लियर हो गई, क्या क्या है देखो। इस थर्सडे 25 मार्क्स का इजी पेपर रखना है कि लेवल कैसा रखना है, हार्ड रखना है? मीडियम। मीडियम रखना है, ओके। इजी रखो ना सर। फिर हाईएस्ट 17 या 18 हो गए, ओके, कोई बात नहीं, चलो। वोकेबुलरी, फिर ये बेलिंदा वाली जो हमने पोएम पढ़ी वो, फिर मैडम वाला लेसन, ओके, उसमें से ऑब्जेक्टिव, ग्रामर में वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, फिर टू, ओके, जितने टॉपिक हुए उसमें से होगा। मीडियम रखेंगे पेपर, बहुत इजी भी नहीं और बहुत डिफिकल्ट। लास्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा डिफिकल्ट रखा था मैंने, कोई बात नहीं, बोर्ड के हिसाब से जो जिस तरह से बोर्ड में होता है एवरेज, ओके, इस तरह से पेपर करूंगा। ये थर्सडे और संडे ऑब्जेक्टिव, उसमें सॉरी सब्जेक्ट, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उसमें एक तो ऐसे लिखना है, क्योंकि ऐसे नहीं लिखते हो आप बहुत अच्छा, बहुत स्टूडेंट ने नहीं लिखा है अच्छी तरह से। ओके सर मैराथन के पेपर चेक हुए? सॉरी, मैराथन टेस्ट जो थी ना 80 मार्क्स की, उसके पेपर चेक हुए? हाँ, पेपर्स मोस्टली हो गए, चेक थोड़े बाकी है। आज मैं मार्क्स भेज दूंगा सर को, राहुल सर को, चेक करके। अभी ये लेक्चर के बाद एक लेक्चर है, उसके बाद में भेज दूंगा चेक करके। थोड़े कुछ बाकी है, टोटल बाकी है, सारे टोटल भी बाकी है। मैंने बोला था इंट्रोडक्शन होना चाहिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, बहुत कम स्टूडेंट्स ने लिखा है इंट्रोडक्शन आंसर में। ओके, इंट्रोडक्शन है, परफेक्टली ऑल द टॉपिक इंक्लूड किए हैं, फिर थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, देन इट्स ओके, आई कैन गिव यू फुल मार्क्स, 2 मार्क्स, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ कट किया है, ऐसा नहीं कि पूरा लॉन्ग आंसर लिखा है, पूरा पेज भर दिया है, तो ऐसा भी स्टूडेंट्स है कि पूरा पेज भर दिया है तो भी मैंने हाफ मार्क्स दिया है, क्योंकि आंसर रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं है उसमें। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, संडे ऐसे, लॉन्ग क्वेश्चन और रिपोर्ट, ठीक है, इतना लगते है सारा लॉन्ग, जिससे थोड़ी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। एक मिनट, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि पेपर सेट करना मुझे बाकी है, अभी लिखना है। बोलो, और कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम कंप्लीट करते हैं मीटिंग यहाँ पर। Okay, thank you very much. You can leave the class.